ایک بہت اہم پیغام کے بعد ایم کیو ایم کے وہ دھڑے جو آپس میں لڑ رہے تھے 2 دن پہلے، لیکن اس کے بعد ایک ہو گئے ہیں، اور اس ایک ہونے کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں حیدرآباد کے اندر کیا ہوا ہے۔ وہ کس کا پیغام تھا کہ جس کے بعد اب یہ دونوں دھڑے جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے اب شیر و شکر نظر آئیں گے، اور یہاں تک ہوگا معاملہ کہ جو ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے وہ ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ یہ قیامت کا منظر اب کیسے ہوگا خبر دینے والا ہوں۔ اب شب آزادی پہ دیکھ لیجیے گا نا کیا کریں۔ کون آ گیا ہے جو موساد کا ایجنٹ بن گیا ہے، اور موساد کا ایجنٹ بھی ایسا کہ جو پاکستان کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نتائج بہت برے نکلیں گے، خطرناک نتائج نکلیں گے، آپ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ تمام کے تمام سندھی قوم پرست اور پاکستان پیپلز پارٹی یکدم باہر کیوں آ گئی ہے؟ نہ آواز پنجاب سے اٹھی، نہ کے پی کے سے اٹھی، نہ بلوچستان سے اٹھی تو سندھ سے اٹھی۔ یہ در حقیقت سندھ کی تقسیم کی بات ہے، یا پھر یہ فارمولہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس نظام سے نکلنے کی بات ہے؟ کیونکہ آئی ایس پی آر نے بھی انکار کر دیا نا، یہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ نواز لیگ کے ہیں۔ آفاق احمد نے کیا پیغام دیا ہے؟ کیا وہ ابھی کی موومنٹ کے خلاف جا رہے ہیں؟ آخر خبر کیا دی جا رہی ہے؟ جو لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے علاوہ پیسے کمانے کی۔ محسن نقوی پر چڑھائی کون کر رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں وہ کل فرما رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایسی خبر کہ ایم کیو ایم کے وہ دھڑے جو ایک دوسرے کی شکل تو دور کی بات ایک دوسرے کے خلاف بیانات پر بیانات دیے جا رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے کے پروگرامز کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا۔ اب یکدم ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ دونوں جلد آپ کو ساتھ نظر آنے والے ہیں؟ یہ خبر میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں اور کیسے دوں گا، یہ بڑا اہم انکشاف آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن بڑی خبروں کے لیے ضروری ہے کہ ڈریے نہیں، جھشکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بڑی اہم اور بڑا اہم خبر آپ کو دوں گا، لیکن اس وقت ہلچل سی مچ گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ پانی کے اندر، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کسی نے کنکر گرا دیے۔ آپ کو یہ شور لگ رہا ہوگا کہ کراچی صوبہ بننے کے لیے اب وفاق، اور نہ صرف وفاق بلکہ پاکستان کے مقتدرہ حلقے جسے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ یہ باتیں آپ کو مختلف اخبارات، مختلف ٹی وی چینلز، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جناب ایسا ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے اور ویسا ہونے والا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گفتگو گزشتہ 2 سال سے میں کر رہا ہوں، اور میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے آنکھیں کھلنا ضروری ہے، مگر اس آنکھیں کھولنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور سیاست کو سمجھتے ہیں۔ جناب والا، آپ کو علم میں ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب سندھ کی تقسیم کے خلاف تھے۔ جب انہوں نے پی ایس پی بنائی اور ایم کیو ایم پاکستان یا اس طرح کے کوئی اور گروہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے یا پھر سندھ کے اندر 2 تقسیم ہونی چاہیے، تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب یکدم سے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے سندھ کی تقسیم کے خلاف رہے تھے جب تک وہ پی ایس پی میں تھے۔ تو کیا پی ایس پی میں کے بعد وہ جب ایم کیو ایم میں آئے تب ان کے موقف کے اندر تبدیلی رونما ہو گئی ہے؟ سوال میرا یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی ہے، یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے مجھے ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے ایک بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا جلد ایک بہت بڑی موومنٹ چلنے والی ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سندھ کی تقسیم ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے یہ عرض کس نے کی ہے اور آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو بہت ہی اعلیٰ حلقوں کی باقاعدہ خبر دے رہا ہوں، اور وہاں پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور ہماری قیادت کو
बता दिया गया है। उसके बाद ये मामला ऐसा हुआ कि एमक्यूएम तवातुर के साथ एमक्यूएम के वो जमात के जो कि सिंध असेंबली के अंदर उससे पहले जब कभी भी सिंध की तकसीम की बात हुई तो एमक्यूएम ने उसकी मुखालफत की, और जब कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी करारदाद लाई तो हमेशा उसकी हिमायत की। लेकिन इस साल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाती है तो उस वक्त उनके डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा खड़े होते हैं और उस करारदाद की मुखालफत कर देते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एमक्यूएम सिंध की तकसीम के हवाले से मुत्तफिक नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से। अब जाहिर सी बात है एमक्यूएम एक ऐसी जमात जो इस वक्त इतना दबाव नहीं ले सकती, तो फिर क्या वजह थी कि वो इतने दबाव के बाद उस मामले की तरफ आती है कि जो आज से पहले नहीं हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम बार बार मुतालबात नहीं करती रही, लेकिन इस बार इसमें इतनी शिद्दत क्यों आ रही है और वजह क्या है? और उसकी वजह अगर आप समझना चाहें तो आप ये देखिए कि अब से कुछ दिनों पहले दुनिया टीवी के मालिक और दुनिया टीवी के मालिक के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ बड़े करीबी ताल्लुक रखने वाले आमिर साहब जो हैं वो यहाँ कराची तशरीफ लाते हैं और यहाँ पर सिंध की तकसीम और सिंध के फार्मूले पर गुफ्तगू करते हैं, और उसके बाद उनकी बड़ी खिंचाई होती है। उसके बाद अलीम खान आकर यही बात करते हैं, और उसके बाद वो तमाम लोग के जिनका वफाक के साथ खास ताल्लुक है और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं, वो तमाम के तमाम की तवातुर के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मामला क्या है? ये मामला तो हमने 2002-2004 के अंदर खास तौर पर उस वक्त भी सुना था जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में थे। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हम ये गुफ्तगू अक्सर सुना करते थे कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो पंजाब को भी तकसीम होना होगा, सिंध को भी तकसीम होना होगा, और बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी तकसीम होना होगा। ये फार्मूला हमेशा से दिया जाता है, लेकिन क्या इस फार्मूले में इस बार वाकई में आपको इतनी संजीदगी नजर आती है? ये बात कही किसने? मैंने आपसे कहा था कि ताकतवर हलकों के सबसे अहम शख्सियत और अहम नुमाइंदे मोहसिन नकवी ने ये बात कही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, जिसे अपना बेटा तस्वुर करते हैं, उसने बात कही है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। खास तौर पर अगर आप निसार खोड़ो का बयान देखें, आप सईद गनी का बयान देखें, मुराद अली शाह का बयान देखें, तो आपको ये लगेगा कि वो कह रहे हैं जनाब हम मर जाएंगे लेकिन सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। असल में सिंध की तकसीम कर कौन रहा है? क्या वाकई में इस तरीके से अगर सूबे बन जाते हैं तो क्या इसे तकसीम हो जाते हैं? अभी तकसीम का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे यहाँ मामला ये होता है कि हमारे यहाँ इंतजामी मामलात को भी आमतौर पर कल्चर के साथ जोड़ दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो कल्चर तबाह हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिंधिज्म की बात करें तो बेसिकली वो एक जगह का नाम है या फिर एक कल्चर का नाम है। अगर वो जगह का नाम है तो फिर आप ये समझिए कि उस जगह में कई बार ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई है जो कि बड़ी ही मिसाली रही है। कराची मुंबई का हिस्सा रहा, उस वक्त ये मूवमेंट्स नहीं हुई, और कराची वफाक का हिस्सा रहा, उस वक्त ये मूवमेंट नहीं रही। और अगर कराची अब अगर गुज़िश्ता 40-45 सालों से ही सिंध की जमीन करार दी जा रही है, अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको आगे माजी के अंदर कहीं पर भी उसका हिस्सा नजर नहीं आएगा। खैर हम ये बहस नहीं कर रहे, हम ये बहस कर रहे हैं इसी तरीके से आप पंजाब में चले जाएं। पंजाब में मुल्तान तक का इलाका एक जमाने में सिंध करार दिया जाता था, मगर उसके बाद जब नई तकसीम और नई फार्मूला बंदी हुई तो उसके बाद बहावलनगर स्टेट को भी पंजाब के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये तकसीम दर तकसीम और तकसीम दर तकसीम और मिलाप दर मिलाप तो हमेशा वक्त की जरूरत के मुताबिक होता रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि कल्चर तकसीम होता है तो कल्चर से तकसीम कभी भी नहीं होता, बल्कि कल्चर जो होता है वो अपनी एक बुनियादी हैसियत रखता है, वो हमेशा से कायम रहता है। मगर इंतजामी यूनिट्स हमेशा से तब्दील होते रहे और उसमें जाहिर एक अलग ही मामला है। मगर सिंध के अंदर ये सूरत हाल पाई जाती है कि सिंध के अंदर इंतजामी यूनिट्स अगर वो बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में रहने के लिए बने तो उसे कबूल कर लिया जाता है, लेकिन अगर वो ना हो तो उसके बाद फौरी तौर पर सिंध की तकसीम नाम खपे मरसू सिंध ना डेसू की बात हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से बात है कि जो कल DGISPR ने भी कही कि जनाब अगर आप जीत रहे हो तो निजाम बहुत अच्छा है, जब आप हार रहे हो तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब यहाँ तो कोई ईमानदारी नहीं होती है, यहाँ तो शफाफ इलेक्शन नहीं होते। यानी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है
तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कश्मीर का इलेक्शन वो हारने लग जाती है तो कहते हैं हम रियासत को ये कर देंगे, मैं शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का बन जाऊं, ये वाज़ेह तौर पर धमकी दी। और इसी तरह की गुफ्तगू होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को तकसीम किया, न सिर्फ उसने तकसीम इसे डिस्ट्रिक्ट के तौर पर किया ताकि वो अपनी ग्रिप को मजबूत कर सके, ये कराची के अंदर की तकसीम को उसने जानबूझकर किया क्योंकि उसका इक़्तिदार हावी रहता था। उस वक्त ये बात क्यों सिंध के किसी कौम परस्त की तरफ से नहीं की गई कि जनाब कराची के अंदर इतने हिस्सों में तकसीम क्यों किया जा रहा है, कराची को जानबूझ के केमाड़ी टाउन क्यों बनाया गया, जानबूझ के केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को क्यों बनाया गया, जानबूझ के मलीर के डिस्ट्रिक्ट को क्यों बनाया गया, जानबूझ के कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट को क्यों बनाया गया। इन सब को बनाने की सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जा सके। और जब कराची को तकसीम करने की बात आती है तो कहते हैं कि ठीक है। इसी तरीके से जब ठट्टा और सजावल को डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना होल्ड कायम रखना था। ठट्टा सजावल के मिलाप के जरिए उस जमाने में शराजी ताकतवर बहुत ज्यादा थे और ये कबूल नहीं था, तो उस वक्त ठट्टा और सजावल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हो सके। अब किसको क्या फायदा पहुंचाना था वो उसके तहत पहुंचाया गया और हमेशा से पहुंचाने की बात होती है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही सिंधी कौम परस्ती का तहफ़्फ़ुज़ है, या फिर सिंध का तहफ़्फ़ुज़ है, या फिर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। ये बात बहुत ज्यादा अहम है कि हर जगह पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1984 यानी 1981-82 से ही सिंध कार्ड को खेलना शुरू किया। आपके इल्म में होगा कि उस वक्त से ही हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में होती है तो सिंध कार्ड को खेलती है और उस सिंध कार्ड को ही उसकी पहचान समझते हैं। तो ये बात खुद सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं को, सिंध के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ देना ही सिंधी कौम परस्ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाना ही क्या सिंध की मजबूती की वजह है, या फिर अवाम क्या चाहते हैं? अवाम क्या ऐसा बुनियादी ढांचा चाहते हैं कि जहां हर इलाके की तरक्की हो सके, हर शख्स खुशहाल हो सके और तरक्की की तरफ रास्ता गामजन हो सके। ये बात इसी वजह से अहम है। मगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी सिंध की तकसीम नहीं चाहती है, मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी पंजाब की तकसीम नहीं चाहती है, इसी तरीके से पीटीआई कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम नहीं चाहेगी, और बलूचिस्तान का तो अल्लाह ही वारिस है। तो खैर नुक्ता यह है कि उसके बाद से बड़ी खलबली मची हुई है और बड़े मामला बचे हुए हैं। मगर जब कभी भी निजाम की तरफ से आवाजें आना शुरू होती है तो हमारे यहाँ बहुत सारे सियासी जमातों के मौक़िफ़ भी तब्दील होना शुरू होते हैं। वो सियासी जमातें हैं कि जो कि किसी जमाने में तकसीम की, सूबों के कयाम की हिमायत नहीं करती है, या वो अशखास, वो लोग कि जो सियासत के अंदर इसकी मुखालफत करते थे, जबदम से उनकी जब बड़ी जगहों पर कोई फैसले तब्दील होते हैं तो वो मूड के मुताबिक तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो समझते हैं कि फलां लीडर के साथ इस वक्त बैठना मुनासिब नहीं है तो वो उनके साथ बैठना मुनासिब नहीं समझेंगे, वो फौरन अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ये देखते हैं, वो लोग के जो कल तक सिंध की तकसीम की मुखालफत करते थे, आज वो आपको सिंध की तकसीम की बात करते हुए ज्यादा शदोमत के साथ नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि जाहिर है अगर वो समझते हैं कि अगर उन्हें वफाक के साथ रहना है और वफाक की पॉलिसियों में कोई तब्दीलियां रोनुमा हो रही है तो फिर हम उनके साथ फ्लो करेंगे, हम उनके साथ बहेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। ये तो हो गई खबर। अब इसमें मैंने किसके मुताल्लिक इशारा किया है, अब मेरे प्रोग्राम को शुरू से यहां तक देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वाज़े नजर आ जाएगा। दूसरा, क्या वाकई में सिंध की तकसीम का फार्मूला है? यहाँ पर आफाक अहमद साहब भी दरमियान में आते हैं। आफाक अहमद साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं सिंध की तकसीम का तो हिमायती हूँ, लेकिन ये इंतजामी बुनियादों से ज्यादा महाजर नजरिए की बुनियाद पर होना चाहिए कि जिसमें महाजरों की तकसीम ना हो सके। यानी कराची में जो महाजर रहते हैं वो कराची में रहने वाले और हैदराबाद वालों को एक साथ किया जाए, यानी कि ऐसा सूबा बनाया जाए कि जिसमें सिंध के शहरी इलाके अलग हो सके और सिंध के देही इलाकों को अलग करा जा सके। शायद उनका फार्मूला ये है, वो अपने एक अलग फार्मूले के तहत है। मगर अब तक एक बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि एमक्यूएम किस फार्मूले के तहत सिंध तकसीम या सूबे बनने की बात कर रही है। क्या वो ये चाहती है या वो समझती है कि कराची की ही बाउंड्रीज को एक अलग सूबा करार दिया जाए, या फिर वो कराची और हैदराबाद को अगर मिलाना चाहती है तो कराची और हैदराबाद के दरमियान एक लाइन, एक लकीर तो नहीं मिलेगी, बल्कि कराची और हैदराबाद के बाद पूरा ठट्ठा बदीन के साउदर्न सिंध की बात कर रही है। अभी तक कोई भी ढांचा सामने नहीं रखा गया। शायद इसके बारे में वो इंतजार कर रही है
कि कहीं और से कोई ढांचा आ जाए तो उसकी हिमायत की जाए। मामला सारा ये है कि दर हकीकत कोई भी तकसीम हो या कोई भी फार्मूला तय हो, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि क्या उससे लोगों के फायदे के लिए काम किया जा रहा है या फिर एक अपने ख्याल की बुनियाद पे किया जा रहा है कि अगर ऐसा तजर्बा कर लिया जाए तो ये कामयाब रहेगा। बेहतर ये होगा कि एक तहकीक की बुनियाद पर, एक आराम की बुनियाद पर, एक समझ की बुनियाद पर, एक अकल की बुनियाद पर इंतजामी ढांचे को तश्कील दिया जाए और उसके बाद कोई बेहतर फैसले की तरफ जाया जाए। अगर ये फैसला सिर्फ किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है तो शायद ये काबिल कबूल या काबिल अमल नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, एमकेएम के दरमियान इख्तलाफात अपने उरूज पर है। ये इख्तलाफात अब इस हद तक हो गए कि 2 दिन पहले कराची के साथ साथ हैदराबाद के जोन के अंदर एमकेएम और पीएसपी एक दूसरे के सामने आ गई, यहाँ तक कि उनके दरमियान गालम गलोच और तमाम मामला हुए। मगर एकदम से करवट लेता है, एकदम से करवट लेती है। और करवट ये होता है कि जनाबे वाला आज, पहले एक वाक्य बताता हूँ फिर आपको दूसरा वाक्य बताऊँ। आज कराची में एमकेएम के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब एमकेएम के रहनुमाओं से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एमकेएम पाकिस्तान, यानी एमकेएम पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर रहनुमा है, मतलब सीनियर पार्टी जो है, अब एमकेएम पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टियां हैं, एक एमकेएम पाकिस्तान सीनियर और एक एमकेएम पाकिस्तान जूनियर। अब सीनियर पार्टी कौन है? जो पहले से, और जो जूनियर पार्टी कौन है? जो बाद में आए। लेकिन जो जूनियर है वो कहते हैं कि जनाब हम एमकेएम में पहले से थे, तो वो अल्ताफ हुसैन साहब की एमकेएम में पहले से थे, वो इस एमकेएम पाकिस्तान का तो बकौल खुद एमकेएम पाकिस्तान के लोग हैं, ये नया वजूद है वो उसको मानते ही नहीं है। खैर एक अलग बहस है। आइए गुफ्तगू करते हैं। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात है। आज हुआ ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार, जिनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जनाब इनके दरमियान इख्तलाफात बहुत शदीद हैं, बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा मामलात हैं, हुआ ये कि कुछ फोन खड़के, कुछ मामलात खड़के, कुछ एक साबिक बड़े अहम सरकारी ओहदे पर शख्स के फोन भी खड़के, साबिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। और फिर यह तय हुआ कि भाई फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मुश्तरका तौर पर इस बारे का फैसला किया कि जनाब जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से चलेगी। और 13 अगस्त की रात को, यानी 13 और 14 अगस्त की रात को उन्होंने प्रोग्राम का ऐलान किया। सेम चीज, जरा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सिमिलरिटीज पर गौर कीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि एमकेएम के दोनों धड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एमकेएम के दोनों धड़े सूबे की तशकील के बाद आफाक मसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सूबे की तशकील के अपने फार्मूले के साथ अपने साथ। अब यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 1 तारीख से 14 तारीख तक का जश्न मनाने का ऐलान करते हैं और 13 तारीख को खुसूसी प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब रात को 9 बजे 13 तारीख को लियाकताबाद के ब्रिज पर बड़े प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। मेरा नुक्ता यह नहीं है, नुक्ता यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब आज 1 अगस्त को साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है उसे वो करे और उसके साथ वो आगे बढ़ाए। अब हुआ ये कि वहां पर जाहिर सहाफी भी जो शरारती थे, उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त एमकेएम के दरमियान इख्तलाफात मौजूद है। एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपना एक फलसफियाना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अहम है या हमारे इख्तलाफात? पाकिस्तान बड़ी खबर है और उसके लिए ये बहुत छोटा मामला है। मगर बराबर में ही बैठे हुए थे कौन 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 डॉक्टर फारूक सत्तार। और डॉक्टर फारूक सत्तार वो खबर दे जाते हैं कि जो हम अभी देने वाले होते हैं उससे पहले ही वो दे जाते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये कहा कि नहीं जनाब इख्तलाफ कोई नहीं, आपको 13 अगस्त की रात को नजर आ जाएगा, क्लिप मौजूद है, सुन लीजिएगा, मेरा मुझ पर इल्जाम मत दीजिएगा। अब हुआ क्या है, अभी मैं ये सोच ही रहा था, मैं जरा सा खबर निकालने की तहकीक में था कि जनाब क्या हुआ है कि वो धड़े जो अलग अलग थे वो अब एक साथ 13 तारीख को कैसे नजर आएंगे? बकौल किसके? फारूक सत्तार के। तो जब मैंने अगली खबर ढूंढी तो 2 दिन पहले वो एमकेएम और पीएसपी के कारकुनान, सॉरी एमकेएम जूनियर एमकेएम सीनियर के कारकुनान, वो के जो लड़ रहे थे हैदराबाद के अंदर 3 दिन पहले, आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जनाब हम सब मिलकर जश्न आजादी मनाएंगे। तो वहां पर जो फारूक सत्तार ऐलान कर रहे थे 13 तारीख का, वही ऐलान यहां पर हो रहा था। लेकिन यहां पर फारूक सत्तार के साथ एमकेएम पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, पीएसपी सेक्टर के लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पर एमकेएम और पीएसपी के दोनों के लोग साथ मौजूद थे जो परसों तक लड़ रहे थे। यानी कि कल वो एक ऐसा पैगाम जरूर गया होगा कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया होगा तुसी बैठो और गल करो, यानी कि अब आप बैठे और बात कीजिए। इसीलिए एमकेएम और पीएसपी का वो धड़ा जो कि 2 दिन पहले लड़ रहा था,
आज हैदराबाद के अंदर सेम नजर आया, और उसके बाद मुझे फारूक सत्तार की खबर की यकीन दहानी हो गई। यहाँ फारूक सत्तार साहब जो 13 तारीख को कर रहे थे वो इशारा वाज़ेह था, लेकिन मैंने फिर खबर जानने की कोशिश की कि जनाब ये तो पता करूं मैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर फारूक सत्तार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपको 13 तारीख को सब एक साथ नजर आएंगे, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी ग्रुप वैसे ही अभी अपना प्रोग्राम करने वाला है सुरजानी टाउन के अंदर अगले हफ्ते के अंदर ही। तो जा रहे वो 14 अगस्त से पहले, तो उस पर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग शामिल होंगे, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान सीनियर के लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे ये मालूम हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन जो 13 अगस्त का प्रोग्राम है उसके लिए ज्यादा मुतवक्के ये है कि एक सो कॉल्ड पैगाम रसानी हो चुकी है कि जिसके मुताबिक जो जश्न आजादी का प्रोग्राम होगा उसमें तमाम के तमाम लोग एक साथ होंगे। ये बिल्कुल कहानी उसी तरीके से कि जैसे बजट की जब मंजूरी थी इस्लामाबाद में, खास तौर पर फारूक सत्तार के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी के बराबर वाली कुर्सी में बैठे हुए थे मुस्तफा कमाल। क्यों? क्योंकि वहां बजट की अप्रूवल थी, और उसके उससे एक दिन पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर गए थे कि जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी को मैं चेयरमैन नहीं मानता, लेकिन वहां पर बैठे हुए थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये पैगाम के बाद, ये मैसेजिंग के बाद या ये राब्तों के बाद ऐसा लगता है कि जनाब वाला 14 अगस्त के प्रोग्राम में तो साथ नजर आएंगे, लेकिन वैसे अलग अलग होंगे। खबर मैंने आपको पूरी दे दी है, अब आप समझ जाइए। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप मुझसे ज्यादा अकिल है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप मुझसे ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, आप मुझसे ज्यादा हावी आदमी है, आप मुझसे ज्यादा बहादुर आदमी है, आपके पास मुझसे ज्यादा ताकत है, आपके पास सब कुछ, आपके पास इल्म के खजाने, तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और बकौल आप सबसे ज्यादा सीनियर भी हैं, तो आप सब कुछ समझते हैं। तो जनाब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कह चुका हूँ। तो खबर आपको मैं दे चुका हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पैगाम दे दिया गया है। खबर तो बड़ी एक और भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, और वाज़ेह पैगाम ये नजर आता है कि जनाब जितना उछलना कूदना था, ये इलेक्शन का, कश्मीर वाला इलेक्शन इस हफ्ते हो गया, अब अगले हफ्ते से या 14 अगस्त के बाद से आपको नया पाकिस्तान नजर आएगा। एक बार वो नया पाकिस्तान का नारा किससे लगाया था? इमरान खान ने। तो नए पाकिस्तान के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने टीवी प्रोग्राम के नाम रख दिए थे नए पाकिस्तान, और नया पाकिस्तान आज तक उनका चलता हुआ आ रहा है प्रोग्राम। पता नहीं कितनी बार भाई, पाकिस्तान एक ही है, सही है, नया पुराना क्या होता है। अब पाकिस्तान में हालात वाकयात बदलते रहते हैं, लेकिन उनको चाहिए नया पाकिस्तान। तो अब वो जो नया पाकिस्तान है वो आपको नजर आएगा 14 अगस्त के बाद। तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन आप भरपूर कीजिएगा। ज़ाहिर है हमने आज़ादी हासिल की थी, हमारे आबा और अजदाद ने लाखों जानों का नजराना दिया था, और मैं तो ज़ाहिर मेरे तो ख़ानदान से बहुत सारे लोग इस हवाले से शहीद हुए थे। खैर अब तो यहीं तक कहानी रखते हैं, आगे की सियासत आपको मज़ेदार बताऊँगा मैं, मगर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, याद दीजिएगा। अल्लाह के बाद।